you can be able to see that again it is moving away and there will be a formation of new oceanic floor. ये दोनों क्या हो जाएंगे? They will go away and another gap will create and another oceanic floor will come. Yes or not? So this diagram ये रिमूव कर रहा हूं. लिखेंगे सुनामी इज ड्यू टू two types of plate tectonic movement. Two types of plate tectonic movement. First one I am talking about ocean continental convergence. Which one? Ocean continental convergence. Word ocean should be always there because the water is in the ocean. Yes or not? हमें water को move कराना है. Yes or not? Fast movement of the water. So the ocean should be always there. Ocean continental convergence. So what you are finding that one denser ocean subduct below less denser continental plate. This is what? And this is what I said that? Clear? Oceanic continental convergence. Listen me. Shall I? So here you can see like this is a continent and this is an oceanic and here it is going down. Can you see? So this is a hard plate which is bending, yes or not? And after certain point it is in a rebound back. It's what? What it does? Rebound back, and that you can say that it will uplift the water. It will uplift the. So here it can be, there will be in the form of what I said that? Elastic rebound concept, and that will uplift the oceanic, and here the oceanic water will uplift. Getting my point? And when the oceanic water will uplift, it will cause tsunami waves in the nearby coastal zone. And it will move here, it will move here. It is clear? So ये दिख रहा है पहला पानी उठा, नीचे के कई सारे पानी एक एक लगातार आएंगे और ये फिर कन्वर्ट होता चला जाएगा वेव में. अभी मैं समझाऊंगा how it is. So it is clear to you? So what you can be able to see that this is your. So this is happening here, suppose. Understood? And then water has uplifted. Water has uplifted. When the water, it is uplifting the trillion tons of water from the below. और जब ये यहाँ पर रिबाउंड होगा तो क्या आएगा? अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए ग्रेटर देन. अंडरस्टूड इट? सो इट इज अपलिफ्टिंग द वाटर. ध्यान से देखना, ये इतना पानी उठा. लिसन मी केयरफुली. दिस मच ऑफ वाटर अपलिफ्टेड सडनली. जब ये उठेगा तो यहाँ से पानी हट जाएगा. तो ये जब उठेगा तो इस रीजन को पानी, यहाँ का पानी जो कम होगा इसको फिलअप करेगा ये. यस और नॉट? इट विल गो टू फिलअप.
And whatever the water which has been, I said that similarly here it is also go to fill up. Yes or not? And from here this water will try to come here again. तो यहाँ पे water की कमी होगी, yes or not? And from here also then it will go to fill up this one. So here it is a wave generated. Here it is this way wave generated, and here this way wave generated. It is clear? And it is in a wave. Clear? And its wavelength is, wavelength समझते हैं ना? Suppose इसी को समझ ले, wavelength is 700 to 800 kilometer. What is the wavelength? And average wavelength is 150 to 200 kilometer. Maximum it can go to the 700 to 800. Wavelength समझ रहे हैं? And the deep ocean you can't see this wavelength. आपको दिखेगा नहीं deep ocean में. ध्यान से पहले. Another speed of tsunami equals to under root GH. Under root, यदि सुनामी की स्पीड निकालना है तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सुनामी? ध्यान से लिख लेंगे अंडर रूट GH. ये सब कुछ नोट करते चलें. सुनामी स्पीड इज अंडर रूट, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू आप जानते हैं, क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पढ़ा है ना, 9.8. और उसको हम क्या लिख सकते हैं? 10. अरे थोड़ा सा साइंस इतना तो पता है. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो हम इसको क्या लिखेंगे? जस्ट टेल मी. 10. व्हाट शुड आई राइट? और सपोज करो कि ये 4000 मीटर के डेप्थ पे हो रहा है. ओशियन फ्लोर इज 5000 मीटर, 6000 मीटर, समथिंग लाइक दिस. And I said that suppose it is happening at 4000 meter. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस में लिखा मैंने? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर में ही है, तो डेप्थ भी किस में लूंगा मैं? सो दिस इज हैपनिंग, अपलिफ्टमेंट ऑफ वाटर इज हैपनिंग एट व्हाट? सो ये टोटल कितना हो गया? 40,000. यस और नॉट? यस और नॉट? तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2. एंड 40 का स्क्वायर रूट 20. सो व्हाट इज द स्पीड? व्हाट इज द स्पीड ऑफ सुनामी? सो यू कैन बी एबल टू सी दैट 200 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है. कुछ याद है आपको? सीसेट क्लियर करना है आपको. 18/5 कितने मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से कैंसिल किया, 5 4 जा 20 एंड 0 40, एंड 40 एंड 18 4 जा 720. सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सुनामी? समझ में आ रहा है? आपके जो जेट प्लेन मूव करते हैं ऐसी स्पीड है इसकी. 700, 800, 900 किलोमीटर पर आवर. इसकी वेवलेंथ क्या है समझ में आ चुका है? मैं अभी डेफिनेशन में वेवलेंथ भी बोलूंगा. इट हैज हाई वेवलेंथ, यस और नॉट? एंड स्पीड ज़्यादा है तो कैन आई से दैट हाई काइनेटिक एनर्जी? अरे बोलो तो सही. कैन आई से दैट सुनामी हैज हाई वेवलेंथ विद हाई काइनेटिक एनर्जी? क्लियर? अब ये कोस्टल जोन पे आ रहा है तो सडनली इसका वेवलेंथ क्या है? टूटता है. कोस्टल सैलो जोन, तो जब स्पीड इसके रुकेगा तो स्पीड रुकेगा. अरे स्पीड लो होगा या नहीं होगा? कोस्टल जोन, सैलो कोस्ट विल, व्हाट आई सेड दैट, ऑब्स्ट्रक्ट. द स्पीड विल रिड्यूस, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस. लेकिन एनर्जी तो कभी भी कम नहीं होता है. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी. एंड इट विल, व्हाट आई सेड दैट, राइज अप. इट विल, गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पर एक ये और इधर भी ऐसे चल रहा है. यस और नॉट? सो इट इज गोइंग एवरीवेयर. सो इट इज इन अ सीरीज ऑफ
series of sea seismic wave. First point, yes or not? It is a series of, समझ में आ गया? एक आएगा या बहुत सारे आएंगे? साइक्लोन में एक ही आता है. साइक्लोन आया, दे आर अपलिफ्टिंग स्टॉर्म सर्ज. बट यहाँ पे जो आ रहा है, एंड इट्स हाइट कैन बी ऑफ 15 मीटर. 15 मीटर समझते हैं? थोड़ा या ज़्यादा है? व्हाट इज द हाइट ऑफ 4 फ्लोर बिल्डिंग? अराउंड 15 मीटर. सच में आया है. लास्ट टाइम ऐसे देख रहे होंगे, एंड द लास्ट टाइम स्नैपशॉट्स आर आल्सो टेकन. कुछ लोग ऐसे ले रहे होंगे सेल्फी. लास्ट टाइम बहुत सारे ऐसे होते हैं. सो आई सेड, समझ में आ गया? तो one point I make it to understand series of sea seismic wave. Another we have seen that it is in high wavelength. Another we have said it is, I said that high kinetic energy. Clear? अरे बोलो तो सही. अच्छा डेफिनेशन चाहते हो तो बोल दो, नहीं तो बोलो कि सर आप एमी लिखवा दो, तो मैं एमी भी लिखवा दूंगा. अच्छा ये बताओ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? एम्पलीट्यूड तो वही होता है ना, हाइट ऑफ द वेव. तो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है. क्या यहाँ पर मैं लो एम्पलीट्यूड बोल सकता हूँ? मूविंग विथ, अरे एम्पलीट्यूड जानते हो या नहीं? साइंस के वर्ड यूज करूँ या नहीं? तो बोल दो, है ना? मूविंग विथ हाई वेवलेंथ, लो एम्पलीट्यूड एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, एंड इन द कोस्टल एरिया कन्वर्टिंग इनटू पोटेंशियल एनर्जी. यस और नॉट? और एक पॉइंट, सीरीज ऑफ. क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ चुका है? तो ये आइडिया हो गया. तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? ये रिबाउंड कर रहा होगा और ये पानी इधर आसपास के कोस्टल जोन में जाएगा. यस और नॉट? जाएगा. सो ओशियन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस इज कॉजिंग, आई सेड दैट व्हाट? सुनामी फॉर्मेशन. Ocean continental convergence zone, sometimes elastic rebound of the continental plate. Yes or not? या oceanic plate? Continental. ये continent ये जाएगा ना ऊपर, rebound. Yes. Shall I remove this? तो प्लेट टेक्टोनिक कोई क्लियर है? मेरी क्लास में गैप देखकर नहीं आओ, और नहीं तो फटाफट उस वीडियोस को देखा करो, ठीक है? कल आप जो नहीं आएंगे तो बेसिक ऑफ साइक्लोन मिस कर गए होंगे. चले, सबने बना लिया? शैल आई रिमूव? ये हमने कौन सा देखा कन्वर्जेंस? ओशियानिक, ओशियानिक सॉरी ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस. इलास्टिक रिबाउंड कंसेप्ट क्लियर हो चुका है? ध्यान से. Another is oceanic convergence. Clear? So this is, I said that it is in a continental plate, and this is oceanic plate, and this is oceanic plate. Getting my point? So they are the two oceanic plate, and both are made up of basalt then. लेकिन एक उसमें से कोई ना कोई किसी में ज़्यादा है आयरन होगा और एक में आयरन
तो ये क्या हो गया, डेंसर हो गया. वन विल बी मोर डेंसर, अनदर विल बी. तो हमेशा है मोर डेंसर विल पुट द डाउन एंड इट विल व्हाट, सबडक्ट बिलो. क्लियर. क्या यहां पर इलास्टिक रिबाउंड होगा? इन दिस रीजन ऑल्सो इलास्टिक रिबाउंड. और यहां पर ध्यान से देखेंगे, फ्रिक्शन, ड्यू टू द फ्रिक्शन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मैग्मा. 3 रीजन्स होते हैं, बस मैग्मा समझ रहे हैं ना. रॉक मेल्ट हो गया, रॉक मेल्ट, एंड मैग्मा स्टार्ट, व्हाट आई सेड दैट, कमिंग अप, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, this is coming into sea water, solidify, coming into sea water, solidifies, coming into sea water, solidified, become a volcanic island. It becomes, yes or not? तो ये कौन से फ्लोर पे ओशियानिक, किस फ्लोर पे बन रहा है वोल्केनिक आइलैंड? नीचे वाला जो जा रहा है या जो ऊपर वाला है, लेस डेंसर वाला? इट इज फॉर्मिंग ओवर लेस डेंसर ओशियानिक प्लेट, यस और नॉट? समझ में आ चुका है? So यहाँ पर what is happening, yes tell me? Elastic rebound, yes? Yes or not? And the great amount of what? Earthquake comes. Clear? And what should be the intensity of the earthquake? More than 7. वैसे इंटेंसिटी बोला नहीं जाता, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, लेकिन लिखने की आदत जो हमारी हो चुकी है, इंटेंसिटी. क्लियर हो गया आपको? डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ के रखने के लिए मैंने बोला था कि आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन लेटर ऑन. अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक, द two types of plate tectonic convergence is causing, I said that, tsunami. Understood it? So we have been able to see, और इसमें आपको समझ में आ गया. मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूँगा उसके बाद I will make you to write down. In I said oceanic continental convergence. In the oceanic continental convergence, denser oceanic plate subduct below less denser continental plate, and after certain period, this continental plate rebound back, and it creates tsunami. It is clear? Similarly, I'll say during the oceanic convergence, denser oceanic plate subduct below less denser oceanic plate. Yes or not? And after certain force or something, certain period, this subducting less denser oceanic plate, less denser, rebound back and creates tsunami. Uplift the water and creates tsunami. So write down. हाँ, बना लिया? Shall I make you to jot down? क्या बोला, नहीं समझ में आया, किसने क्या बोला? हाँ, डेफिनेशन. अभी डेफिनेशन नहीं, अभी तो एक और वोल्केनो बताऊंगा, फॉल्ट बताऊंगा, या नहीं बताऊं? हाँ, पॉसिबली डीडीए में भी हो सकता है. यहाँ पे वो भी ऐसे ही घूमते हैं पुलिस वाले में, आगे में लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेज. कभी कभी देखना आपको इधर इस रीजन में मिल जाएगा डीडीएमए की गाड़ी. कहीं पे आग लगी तो डीडीएमए पहुँच गया वहाँ पर, लिखा हुआ. कभी आपने लाइफ में देखा है डीडीएमए? लुकिंग लाइक पुलिस व्हीकल बट इट इज़ अ डीडीएमए. हाँ, अब ये एम्बुलेंस है कि क्या है अब ये नहीं पता, लेकिन पुलिस की वैन जैसी लिखती है वो. पुलिस वैन समझते हैं ना? सो राइट डाउन. व्हेन ओशियानिक कॉन्टिनेंटल convergence take place, then denser oceanic plate subduct below
less denser continental plate. After certain period, this less denser continental plate after certain period, this less denser continental plate rebound back and uplift large volume of water and creates tsunami all around and creates tsunami. क्लियर है? सो सुनामी चारों तरफ क्रिएट हो जाता है ड्यू टू दिस. अनदर वन इज ओशियानिक कन्वर्जेंस लिखेंगे. व्हेन ओशियानिक convergence take place, then more denser oceanic plate subduct below less denser oceanic plate and after certain period less denser oceanic plate rebound back and uplift large volume of water and convert into tsunami. ये क्लियर है सबको? This figure is clear? इसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पे हिमालय ऐसे बना हुआ है. दिस इज योर विच वन? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अभी बताया था. एंड दिस वन इज यूरेशियन ओशियानिक प्लेट. एंड हियर इट इज एन इंडियन ऑस्ट्रेलियन oceanic plate. Understood it?
and here it is moving northward. आपको कौन सा लगता है? दिस इज अ कॉन्टिनेंटल और यूरेशियन? फिगर बनाने का चांस दूंगा मैं, बहुत अच्छे से आप ड्रॉ करना. दिस इज विच वन? यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट, and this small area is a Eurasian oceanic plate, yes or not? And here it is in a large area of Indian Australian oceanic plate. So which plate is less denser, Eurasian or Indo-Australian? क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर में थोड़ा सा होगा, इट इज नियर टू द कॉन्टिनेंट, तो देयर विल हैव सम कॉन्टिनेंटल कैरेक्टर, और उसमें आयरन की कमी होगी, yes or not? So when it is moving northward, अभी बताया था ना, इट इज गोइंग डाउन, सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इंडो ऑस्ट्रेलियन ओशियानिक प्लेट इज गोइंग डाउनवर्ड. ये यूरेशियन continental plate, and this is an Eurasian oceanic plate, and it is Indo-Australian oceanic plate. So when it is going downward, so it will rebound back. And ध्यान से देखिएगा, it is in a formation of magma and it is coming up. So there is a formation of Andaman and Nicobar and Indonesian archipelago. मज़ा आ गया? यदि कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का होता और बोलता सर क्या बात है सर, और जीएस ज्योग्राफी तो वैसे ही ये सब चीज़ तो दूर का नाता होगा, प्लेट टेक्टोनिक कब खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है. अंडरस्टूड इट? कैन आई से दैट दिस इज एन अर्थक्वेक जोन? यस और नॉट? समझ में आ गया? अंडमान निकोबार इज एन वोल्केनिक आइलैंड आल्सो, इंडोनेशिया एंड ऑल दीज आर वोल्केनिक आइलैंड आल्सो. और इसको जो बोला जाता है, ये जो रीजन है सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है, इसको बोलते हैं अंडमान सुमात्रा. क्या बोलते हैं हम? और यहीं पर ये जो प्लेट ऐसे हुआ था और चारों तरफ सुनामी गया था 2004 में. गेटिंग माई पॉइंट? सो विच प्लेट इज सबडक्टिंग? इंडियन ऑस्ट्रेलियन ओशियानिक प्लेट इज सबडक्टिंग बिलो लेस डेंसर यूरेशियन ओशियानिक प्लेट. एंड 2004, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ एक छोटा सा म्यांमार का प्लेट भी था, ऊपर उठ गया, 15 मीटर ऊपर उठ गया, और लगभग 200 से 300 किलोमीटर के रेंज में. और सोचो कितनी पानी उठाया होगा वो, टूट कर बाहर. उसका नया प्लेट का नाम हो गया, दैट इज माइक्रो बर्मा प्लेट, उसका नाम दिया गया माइक्रो. जब आप सुनामी पढ़ेंगे तो दैट विल बी देयर. सो दिस प्लेट हैज़ बीन अपलिफ्टेड एंड यू कैन थिंक ऑफ हाउ मच वाटर हैज़ बीन अपलिफ्टेड. एंड यहाँ से सारी तरफ सी वेव्स, सभी कंट्री के आसपास पूरा ये, एंड इवन इट इज अप टू द अफ्रीका, सोमालिया कंट्री. अंडरस्टूड? और ये एक वेव नहीं है, सीरीज में है. समझ में आ गया? सो और इसको जब ऐसे कभी भी ऐसे प्लेट जब ऊपर जा रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, यस और नॉट? और इसको बोलते हैं थ्रस्ट फॉल्ट. इसको थ्रस्ट फॉल्ट भी बोला जाता है. जब कोई चीज़ ऐसे जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्या जाएगा? समझ में आ गया? यस और नॉट? इसको क्या बोलेंगे? सो विच फॉल्ट अकर्ड हियर? अंडरस्टूड इट? एंड जनरेटेड सुनामी इन 2004. एंड सिमिलरली हियर इट इज इन पाकिस्तान, यहाँ पर अरेबियन प्लेट है. विच प्लेट इज दिस? And here it is in a Makran. Which region? तो मकरान, यहाँ पर भी दिस इज द सेम वे. यहाँ पर ओशियानिक कॉन्टिनेंटल, विच वन? विच वन? और यहाँ पर ओशियानिक ओशियानिक. अंडरस्टूड इट? सो विच आर द टू इंपॉर्टेंट एरिया विच कैन अफेक्ट इंडिया थ्रू सुनामी? अंडमान सुमात्रा, ये सुमात्रा आइलैंड है, सुमात्रा जावा, सुना है ना आपने? तो इसका नाम क्या दिया गया? अंडमान सुमात्रा. अंडरस्टूड इट? एंड हेयर इट इज विच वन? अरे पाकिस्तान का, बलूचिस्तान का ये रीजन है ईरान के पास. विच वन? मकरान. कोस्ट का नाम सुना है? मकरान कोस्ट नहीं सुना. सुतका गेंडोर सुना है? क्या है? व्हाट इज दिस सुतका गेंडोर? बस इतना ही है. सुतका गेंडोर इज द वेस्टर्न मोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन. क्लियर? एंड इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग, आई सेड दैट बेबीलोन एंड मेसोपोटामिया, हियर इट इज बेबीलोन टू हड़प्पा. इट इज इन अ ट्रेड पॉइंट जंक्शन.
मैं किसी न किसी तरीके से याद रखता हूँ, होल हिस्ट्री क्लियर। तो यहां पे क्या दिख रहा है, मकरान। साथ में आप समझ में गए कि भारत का ईस्टर्न कोस्ट किससे अफेक्ट होगा, अंडमान सुमात्रा फॉल्ट, एंड हियर इट विल बी अफेक्टेड बाय, आइडिया हो गया, फीलिंग स्ट्रांग आ गई। ये कौन सा है, ओशियानिक कन्वर्जेंस, एंड दिस इज व्हाट, मज़ा नहीं आया। यहाँ पर आपने ईरान में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ईरान और बलूचिस्तान में यहाँ पे एल्बुर्ज और जाग्रोस माउंटेन वगैरह बना हुआ है। तो जब भी प्लेट जाएगा तो आपको याद है ट्रांस हिमालय कैसे बना था, यूरेशियन प्लेट के नीचे इंडो टेथिस ओशियानिक प्लेट जा रहा था, एक्रिशनरी वेस्ट सेडिमेंट एंड रिवर सेडिमेंट, बक्कल, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ऐसे यहाँ पे भी तो बनेगा ना कि नहीं बनेगा। समझ में आ गया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मकरान। मकरान इज ए फॉल्ट नियर बाय ईरान एंड बलूचिस्तान, अंडरस्टूड। सो इसके बारे में लिखिएगा। भारत में एक्चुअली यही वाला सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, कौन सा, एंड मकरान। तो हम लोग अब यहाँ पर साथ ही में समझ ले रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी इन इंडिया, अंडरस्टूड इट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुनामी इन इंडिया। Distribution of tsunami in India. First, eastern coast of India. Eastern coast of India. एंड ये क्या समझ में आ रहा है आपको, अंडमान सुमात्रा लिखेंगे, अंडमान सुमात्रा, ईस्टर्न कोस्ट लिखा ना आपको, उसके आगे लिखिएगा अंडमान सुमात्रा फॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अंडमान सुमात्रा फॉल्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर eastern coast of India as well as in Kerala, as well as in and nearby Indian subcontinent countries, and nearby Indian subcontinent countries and other countries. क्लियर है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कंट्रीज के अलावा यहाँ पे म्यांमार भी है, इंडोनेशिया इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो अदर कंट्रीज भी होगा। एंड नाउ यू कैन से दैट यहाँ से सुनामी वेव जनरेट होगा, इट विल अफेक्ट व्हाट, ईस्टर्न कोस्ट, और यहां पे डिफ्रैक्ट होकर कहां जाएगा, अरे कॉर्नर ऑफ द इंडिया, एनर्जी विल डिफ्रैक्ट एंड इट विल गो टुवर्ड्स केरला, अंडरस्टूड इट। अभी मैंने लिखवाया था केरला, समझ में आ गया, यस और नॉट। सो तब यहां पर तो द डिफ्रैक्शन हैज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया आप लोगों को। आपसे ज़्यादा शायद मैं चिल्ला रहा हूँ, परहैप्स इफ आई रिमूव इट ना, द माई साउंड इज इटसेल्फ वेरी ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना।